ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਕੈਂਸੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਫੋਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਸੀਗਾ ਬਿਨ ਚੱਕਰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਏਜ ਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ 2-4 ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗਈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਸਵਾ 8 ਵੱਜ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ, ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਾਂ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਆਂਟੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਂਟੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਂਟੀ ਵੀ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਂਟੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਸ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੌਲੀ 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 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਦੇਖੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਬੁੱਧੀ ਹਜੇ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਠੀਕ ਕਰਨ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ
ਪਤਾ ਨੀ ਬਾਕੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਜ ਕਈ ਰੀਲਸ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਯੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਕਈ ਸੱਸਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡਿਡ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਈ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਨੂੰਹ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵਾਈਫ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਗੇਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਖੇਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਆ ਯੇ ਆ ਵੋ ਆ ਪਤਾ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਜੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਬਸ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਓਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਜਾਂ ਕੁਛ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸਫਲ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਏ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं दिल्ली से आपकी बेटी गुरुपा बोल रही हूँ। गुरुपा जी आपका बहुत टाइम से गुरु जी आपका मैसेज मेरे को आ रहा है कि गुरु जी शुक्राना कर तेरे कई काम शुक्राने के वैसे रुके हुए हैं तो गुरुपा मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर तो गुरु जी वैसे तो आप ने मेरे ना इतनी बहुत ज़्यादा मेरे गुरुपा ने मेरी कई अरदासें पूरी की है बिन मांगे भी करी है लेकिन कभी कभी गुरु जी का मैसेज आता है वो टेलीपैथी से आता है कि तू सोचती है मैं तेरी सुनता नहीं हूँ या मैं नहीं गुरु जी मेरे कर्म ही शायद इतने बुरे हैं कि आप किस किस चीज़ में मेरी करोगे मैंने बहुत पुराने जन्म कर्म गंदे करे हुए हैं शायद गुरुपा तो मेरी गुरुपा की बदौलत मैं तो खुद मानती हूँ जो सांसें भी है मेरी गुरुपा आपकी बदौलत है क्योंकि कई बार आपने मेरे को लाइव ब्लेस किया मुझे मेरे बच्चों को अब मेरी ही शायद किस्मत आती है तो मुझे ऐसी सांस मिली है जो करा करा करती है शायद मेरे पिछले जन्म की बुरे कर्म है ये सब तो गुरुपा और जो है मेरे हस्बैंड उनके उसमें चलते हैं कहने में तो आपका मैसेज आया कि तेरे हस्बैंड को उसने वशीकरण करा रखा है तो सही बात है गुरु जी करा रखा है क्योंकि वो अपनी मदर की बहुत सुनते हैं हमारी भी तो उसकी वजह से वैसे घर में क्लेश रहता है बस मैं गुरु जी आपकी वजह से बस मेरे गुरुपा सब ठीक कर देंगे आप कहते बेटी तू चिंता ना मैं सब ठीक कर दूंगा मेरा सत्संग बोल मेरा मंत्र जाप कर जितना हो सके कर अब तेरे कर्म कटेंगे पूरे जो पीछे मेरे क्यों है तो गुरु जी मेरे को जब टाइम लगता है मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ बहुत मन को अच्छा लगता है फिर मैं आपसे बताती हूँ गुरु जी आप सब सही करो बस मेरे साथ मेरे हस्बैंड का दिमाग ठीक करो और जो है मेरी सास उनको भी बुद्धि दो कि मेरा बच्चों का पीछे तो ऐसा मत हमारे पीछे करे मत करने के लिए इसका पर नहीं चलो गुरुपा पे मैंने छोड़ दिया सब गुरुपा अपने आप सब ठीक करेंगे जैसे क्योंकि मेरे गुरुपा बहुत विश्वास है मुझे कि वो ठीक सब ठीक करेंगे उन्होंने मेरी लाइफ में बहुत कुछ ऐसी बात नहीं मैं तो बहुत ही ज़्यादा उसमें चल रही थी गुरुपा की बदौलत थी जो मैं मेरे बच्चे भी कई बार और मुझे भी कई बार लाइव प्लस किए गुरुपा ने मेरे हस्बैंड को भी लाइव प्लस किया है
ठीक है गुरुपा की जो जब से ही मेरे हस्बैंड की नौकरी वैस हुई है, अब मेरे गुरुपा पे ही सब कुछ छोड़ रखा है और मुझे पता है मेरे गुरुपा सब ठीक कर देंगे। और गुरुपा हाँ, जैसे आपने हर हर संगत की सुनते हो ना गुरुपा, ऐसी जो है सुनते रहना, अपने हर संगत का ख्याल रखते हो ना गुरुपा, ऐसे अपना भी ख्याल रखो गुरुपा, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे गुरुपा हो, आप मेरे पापा हो, मम्मी पापा सब आप ही हो गुरुपा, तो आप अपना भी ख्याल रखो और अपनी संगत का जब सबका ख्याल रखते हो ना, तो मेरे गुरुपा आपको अपना भी ख्याल रखना चाहिए और अपनी संगत का भी। और हाँ गुरुपा, जो आप मेरा सत्संग शेयर करती हैं आंटी, उनका भी, उनके परिवार का भी ख्याल रखना सबका। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ गुरुपा के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे को। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी, आपने मुझे बोला था कि मेरा सत्संग ये है, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। सॉरी संगत जी, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, मैं कहाँ से सत्संग शेयर करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे गुरुजी ने बोला था कि तेरे बच्चे पे किसी की काली नज़र है, और बहुत बार मुझे गुरुजी ने बताया है कि तेरी नंद है, तेरी जेठानी है और सास है, वो तेरे बच्चे को मतलब ऊपरी प्यार करते हैं, वो मतलब अंदर से उसको देख के सड़ते रहते हैं, और बस मेरे अंकल जी को दिखाने के लिए उसको बस लाड प्यार दिखाते हैं। तो मेरे बच्चा बिल्कुल भी ठीक नहीं रह रहा है। 1 डेढ़ महीना हो गया है, ना मैं ठीक हूँ, ना मेरा बच्चे की तबीयत ठीक हो रही है। गुरुपा, आपने मुझे बोला था कि तेरे बच्चे पे कष्ट है और उस पे काली नज़र भी है। तो गुरुजी, आपने मुझे ये भी कहा है कि बाहर का कुछ नहीं खाना, अपने बच्चे को कुछ नहीं खिलाना। मैं क्या करूं गुरुजी, मेरी सास जब भी आती है यहाँ पे कुछ ना कुछ सफ़ेद चीज़ लेके आती है और बिना बताए आ जाती है। मतलब कोई बंदा होता है कि चलो कोई आ रहा है तो मैं उनको फ़ोन करके मना कर दूँ कि ये चीज़ नहीं मत लाना हो गया, कुछ मत लेके आना। मैं इतना भी बोलती तो मेरे घर में मुझे हंस के बोला जाता है कि मैंने अभी तेरे पति को बोल दिया ना तो कलेश हो जाएगा। मतलब वो मेरे को धमकी देते हैं कि हम इसको बोल देंगे तो तेरे को मारेगा पीटेगा। गुरुजी, मेरे अंकल जी का स्वभाव आपने देखा ही है कि वो कितना मुझे आजकल टॉर्चर कर रहे हैं, मेरे पे हाथ उठा रहे हैं। मेरी जेठानी के चक्कर में उन्होंने मुझे इतना मारा। उनकी शराब की आदत भी बिल्कुल बीच में छूट गई थी, कम ही हो गई थी, वो फिर से शुरू कर दी है उन्होंने। पता नहीं मेरे घर की शांति क्यों मेरा भंग कर देते हैं मेरे ससुराल वाले। आप तो हर चीज़ देख रहे हो ना गुरुजी। मैं उनकी आपको मैंने हमेशा बोला है कि गुरुजी मेरी तरफ दोनों तरफ खाई है कि मैं क्या करूं। वो अगर मैं वहाँ का ना खाने दूँ तो मेरे अंकल जी मेरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और मारपीट करते हैं और हर रोज़ ड्रिंक करते हैं। अगर मैं खाने दूँ तो मेरा बच्चा और मैं बीमार होते हैं। गुरुजी, आप ही बताओ मैं क्या करूँ। मैं मार भी खा लूँगी अपने बच्चे के लिए, वो फिर भी नहीं मानते हैं। गुरुजी, आप खुद रोको गुरुपा उनको। वैसे वो 10-10 बार हनुमान चालीसा करते हैं, उनको लगता है कि हम पाप कर रहे हैं और साथ साथ हम पाप धोते रहे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। गुरुजी, आप मुझे हर बार कहते हो कि अब करने वालों की हद पार हो गई है, मैं उनको नहीं बख्शूँगा। अब वो खून के आंसू रोएंगे गुरुजी। अब वो खून के आंसू, उनके बच्चों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उनके बच्चे फल फूल रहे हैं, हर चीज़ हो रही है, पर मेरे बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा है गुरुजी। जो मेरी जेठानी, मेरी नंद, हर कोई मेरे बच्चे के पीछे पड़ गया है। मेरा बच्चा 2 दिन ठीक नहीं रहता है, तीसरे चौथे दिन फिर बीमार हो जाता है। ऐसा क्या हो गया गुरुपा। खाने पीने का मैं ध्यान रखती हूँ, उसके लिए भी मुझे मेरी सास बहुत सुनाते कि तू ध्यान नहीं रखती है। पहले आप उसको बीमार कर दो, फिर मुझे बोलो कि तू उसका ध्यान नहीं रखती है। गुरुजी, मेरे अंकल जी मुझसे ठीक से बात नहीं करते, इतने चिड़चिड़ करते हैं, हर बात पे मेरे को चीखते चिल्लाते हैं। अगर मैं उनको देख भी रही होती हूँ ना तो मुझे इतने चिल्ला के पड़ते हैं, क्या देख रही है, इधर चल, अपना काम कर। इस तरीके से वो मेरे पे चिल्लाते हैं गुरुजी, और मेरे को बहुत ज़्यादा इंसल्ट महसूस होती है। आप तो देखते हो गुरुजी, आप तो घर में ही विराजमान हो, आप देखते हो कि मैं सिर्फ अपने काम में व्यस्त रहती हूँ। इसी वजह से मैं अपने काम में व्यस्त रहती हूँ कि मुझे उनके सामने ना बैठना पड़े। अगर मैं उनके सामने बैठती हूँ तो सिर्फ लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं गुरुजी। आपसे हाथ जोड़ के विनती है पापा कि मेरे बच्चे को ठीक कर दो, मेरे बच्चे को स्वस्थ कर दो। मेरे गुरुजी, मेरे घर में जो भी दिक्कत है उसको ठीक कर दो। अपने वशीकरण का मुझे उपाय बताया कि गणेश जी को
मूंगी दाल चढ़ानी है, 7 बार अंकल जी पे वार कर, मैं वो भी नहीं कर पा रही। जो मेरे अंकल जी मुझसे ठीक से बात नहीं करते, उनके अंदर से श्रद्धा भक्ति सब निकल चुकी है, उनके लिए भगवान को मायने नहीं रखते। हाँ, वो महादेव को मानते हैं, आपको नहीं मानते, महादेव को मानते हैं, पर उनको ये नहीं पता कि आप ही महादेव हो। बस उसमें भी वो स्टेटस लगा देते हैं। वो स्टेटस लगाने से थोड़ा ना कोई किसी महादेव को मानते हैं। महादेव को मानने के लिए आपको पूरी भक्ति तो करनी पड़ती है ना। गुरुजी, मैं आपको अब मैं ये नहीं बोलती कि मैं आपकी सच्ची भक्त हूँ, या मुझे पता है कि मेरे अंदर आजकल बहुत कमियाँ हो रही हैं। मैं ठीक से पूजा पाठ नहीं कर रही। गुरुजी, आप सब जानते हो कि मेरे घर में इतनी नेगेटिविटी है, और कभी मैं बीमार, कभी बच्चा बीमार, बहुत ज़्यादा मतलब अकेली मैं पड़ जाती हूँ काम करने के लिए, और कोई नहीं होता मेरे को सपोर्ट करने के लिए। सिर्फ मेरे घर वाले ही हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, और फिर भी उनको गालियाँ मिलती हैं, आप वो भी देखते हो। गुरुपा, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आपने मुझे कहा था कि तेरे घर में जो भी दिक्कत चल रही है शुक्राना कर, सब ठीक कर दूंगा। पापा, मैं कोई लालच में शुक्राना नहीं करी पापा, बस आपको पता ही है पापा कि मेरे घर में इतने कलेश चल रहे हैं, मैं उसके बीच में शुक्राना नहीं कर पा रही थी। और कुछ मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, अगर मुझे 10 मिनट भी अगर मिले थे तो मुझे शुक्राना करना चाहिए था पापा, मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरुपा। और प्लीज़ गुरुजी, मेरी भक्ति में मन लगाइए कि मैं बीच में बहुत ज़्यादा भक्ति करने लग गई थी, तो मुझे ना अंकल जी ना मेरी सास की कोई भी चीज़ें, उनकी बातें कभी मुझे दुख नहीं पहुंचाती थी। अब वो फिर से मुझे परेशान करने लग गए हैं। मैं हर्ट होती हूँ, और फिर मैं पागल हो जाती हूँ, ना ही मेरी पूजा पाठ में मन लगता है, और बस मैं रोती रहती हूँ, सोचती रहती हूँ। मैं अपना शरीर ख़राब कर रही हूँ, अपना शरीर ख़राब करती हूँ तो मैं बच्चे पे भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। गुरुजी, प्लीज़ मेरे बच्चे को ठीक कर दो, मेरे पति का वशीकरण काट दो। जो भी मेरी सास यहाँ पर आई थी, खाने में कुछ मिला के गई है, उसे भस्म कर दो गुरुपा, हर चीज़ में ठीक कर दो पापा। अगर उनको मेरे बच्चे से इतना ही प्यार हो तो कल से मेरे बच्चे की रिपोर्ट इतनी ख़राब आई है टेस्ट की, अभी तक मेरी सास ने मुझे कॉल नहीं करा। वैसे वो यहाँ डब्बे भर भर के मेरे बच्चे के लिए घी मक्खन देके जाती है, सारी सफ़ेद चीज़ें देके जाती है। और वैसे वो हमें बोलते हैं कि हम फ़िक्र करते हैं, वैसे हमें फ़ोन नहीं करते। गुरुजी, आपकी आंखों से तो कुछ भी दूर नहीं है ना, वो भी आपको भी बोलती रहती, मैं भी गुरुजी को मानती हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि वो आपको माने, और आप उसके सारे पाप देखो अपनी आंखों से, और उसको सज़ा दो गुरुजी। मैं यहाँ पे सत्संग विराम करना चाहूँगी। मेरे बच्चे को ठीक कर दो, उसको टाइफाइड बताया डॉक्टर ने, मेरे को पहले टाइफाइड हो गया था। गुरुजी, उसका टाइफाइड ठीक कर दो, उसे बिल्कुल स्वस्थ कर दो। उसके अंदर खून की कमी, प्लेटलेट सब कम आई है, और सब ठीक कर दो मेरे गुरुजी। मेरे बच्चे को स्वस्थ कर दो। आज मैं जी रही हूँ ना, आज मैं सांस ले रही हूँ, सिर्फ अपने बच्चे के लिए ले रही हूँ गुरुपा। उसको स्वस्थ कर दो मेरे गुरुजी, उसको ठीक कर दो, उसको कभी कोई दिक्कत ना हो, मुझे कर दो पापा। मैं हर चीज़ सह लूँगी अपने ऊपर, पर मैं अपने बच्चे को नहीं देख सकती, मैं टूट जाती गुरुजी, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है उसके अलावा। और वही तो है गुरुजी जो बस मेरे से हंसता बोलता खेलता है मेरे साथ, और वो बेड पे पड़ जाता है तो मैं मरने वाली हालत हो जाती है गुरुपा। प्लीज़ मेरे बच्चे को ठीक कर दो पापा, आपसे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे को ठीक कर दो। मैं सत्संग यहीं पे विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबको सद्बुद्धि दो गुरुजी। मेरे जेठ जेठानी, मेरी सास, मेरे नंद सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। बाकी छोटे छोटे बच्चे भी इतना तेज़ है गुरुजी, मेरे घर का कुछ नहीं खाते, और अपने घर का कुछ हमें खिलाने से बख्शते नहीं हैं वो पापा। प्लीज़ गुरुजी, सब ठीक कर दो प्लीज़ गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सारे संगत जी को जय गुरुजी। मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी, और मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरे अंकल जी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, और मेरे पास गुरुपा का पहले ही मैसेज आ गया था कि तेरे घर में एक अकाल मृत्यु है। और मैंने वो सत्संग सुना भी नहीं था गुरु संगत जी, गुरुपा मुझे उसके लिए क्षमा कर देना। मैंने सिर्फ ऊपर से ही पढ़ा था, कि मैंने सोचा था कि उसको बाद में सुनूंगी। वो बहुत बड़ा था सत्संग, और मैं काम कर रही थी, क्योंकि उस सत्संग को चलाकर हम किसी काम में भी लग जाएं तो सत्संग चलाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, कि वो जो शब्द हमें गुरुपा कहना चाह रहे हैं, सत्संग में हमें बताना चाह रहे हैं, वो हमारे कानों तक भी ना पहुँचे, तो फिर ऐसा लगता है कि हम सत्संग का अनादर कर रहे हैं। तो इस वजह से वो नहीं मैं सुन पाई थी। और जिस दिन वो सत्संग आया था तो उसी दिन मैं अपनी मम्मी के घर चली गई थी।
तो अचानक से शाम के टाइम पे आंधी आ गई और एक टीन आंधी में उड़ के मेरे अंकल जी के ऊपर आके गिर गई और वो उस टीन के नीचे गिर गए। और मतलब टीन क्या, बहुत भारी दरवाज़ा था, तब किसी का ऊपर से लोहे का दरवाज़ा आंधी से और मेरे अंकल जी के ऊपर गिर गया। और बाइक चला रहे थे मेरे अंकल जी, पीछे बस थी, काफ़ी गाड़ियाँ थी और मतलब बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता मेरे अंकल जी का। तो मेरे अंकल जी का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे मेरे ऊपर गेट गिर गया, पर मुझे खरोच भी नहीं आई है, बस मेरी थोड़ी बाइक टूट गई है और हेलमेट मेरा टूट गया है। तो मेरे पास गुरुजी का फिर दूसरे दिन फिर मैसेज आया कि मैंने तेरे अंकल जी को मौत के मुँह से निकाल के लाया हूँ और उसकी मैंने रक्षा करी है। तो मैंने वो सत्संग भी नहीं सुना था संगत जी, और उसके बाद भी गुरुपा ने मेरे अंकल जी की मतलब जान बचाई है। और सत्संग एक सत्संग सच होते हैं, एकदम सही होते हैं वो सत्संग जो हमारे लिए आते हैं, जिसको हम इग्नोर करके चले जाते हैं। पर गुरुपा ने, बस मैंने ऊपर से ही पढ़ा था और मुझे थोड़ा बहुत टेंशन थी, पर मुझे नहीं मतलब कि मुझे पता है कि गुरुपा मेरे अंकल जी मेरे बच्चे के साथ बाहर जाते हैं, पर हमें जो गुरुपा सत्संग सुनने के लिए बोलते हैं तो वो कष्ट करता है। मतलब हम वो सत्संग सुनते तो वो कष्ट आता ही नहीं, वो चीज़ होती ही नहीं। पर वो चीज़ हुई मेरे अंकल जी के साथ। पर मेरे अंकल जी को संगत जी एक भी खरोच नहीं आई, बस थोड़े बहुत उनके कपड़े ख़राब हो गए थे और उनको मतलब कि वो गिर गए थे तो बाइक पे थोड़ा ही, बाइक में लगा लो कि सारी चोटें उस बाइक को ही लगी थी। मेरे अंकल जी को खरोच नहीं आई। और शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और हाँ संगत जी, जिस दिन ये मेरे पास सत्संग आया था तो उस दिन मैं अपनी मम्मी के घर जा रही थी, तो मेरी मम्मी के नीचे पार्किंग के बाहर ही घर में एक कबूतर मरा हुआ था, बिल्कुल घर के बाहर पड़ा हुआ था और मैं उसको देख रही थी और उसके लिए कुछ कर भी नहीं पा रही थी क्योंकि वो मर गया था। तो मैं मतलब गुरुपा ने पहले मुझे सत्संग सुनाया, मतलब दिखाया कि तेरे मतलब घर में अकाल मृत्यु है, फिर वो कबूतर का मरना, फिर रात को ये चीज़ होना। तो संगत जी आप ही देखो कि गुरुपा ने तो संकट वो सुबह ही काट दिया था, जो मेरे अंकल जी पे आने वाला था, जो मेरे अंकल जी की जो मृत्यु लेकर आ रहा था, अंकल गुरुपा ने बोला था। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी वो हमारे गुरुपा इतने अच्छे हैं, हम वो चीज़ पढ़ते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है, वो कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। जब कबूतर अपने ऊपर कष्ट लेता है तो हमारे गुरुपा को बड़ा कष्ट होता है। और शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने मेरे अंकल जी की रक्षा करी और उनको इतनी बड़े हादसे से बचाया। और संगत जी मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, मेरा बच्चा काफ़ी टाइम से बीमार है। गुरुपा मुझे बार बार संकेत दे रहे हैं कि तेरे बच्चे को बड़ा कष्ट है। और जो मेरा बच्चा है उसका बुखार नहीं उतर रहा 1 महीने से, मतलब 2-3 दिन उतर जाता है, फिर उसको 102 103 ऐसे फ़ीवर हो जाता है। तो गुरुपा आपने मुझे बोला है कि उसको कुछ खिलाया गया है तेरे बच्चे को, तेरा शक सही है। तो गुरुपा किसने क्या खिलाया है तो मैं तो नहीं जानती, मेरी सास के यहाँ से ही आता है जो भी कुछ आता है। और आप मना भी करते हो खाने के लिए कि तेरी जेठानी और सास कुछ लेकर आए तो मत खाया करो। पर गुरुजी आप देख रहे हो मेरे अंकल जी को किस कदर उन्होंने अपने वश में किया हुआ है। इतना ज़्यादा वो मतलब अगर मैं ये भी बोल दूँ ना कि तुम्हारी मम्मी ऐसे बोल दूँ तो भी वो इतना गंदा मेरे को गाली देना शुरू कर देते हैं, मेरे घर वालों पर चले जाते हैं, मेरे घर वालों को गाली देने लगते हैं। तो मैं गुरुपा मैं कुछ नहीं कर सकती, आप सब आपके सामने ही है गुरुपा। और आपने मेरी भक्ति भी कम हो गई है, मैं समझ में नहीं आ रहा कि मैं अंदर से लगता है कि किसी ने मुझे ना मतलब मैं चल रही हूँ पर मैं चल नहीं रही हूँ, मेरे को किसी ने बेड़ियों में बांधा हुआ है, आप तक जो पहुँच नहीं पा रही हूँ। मैं हर चीज़ कर लेती हूँ, सारा काम कर लेती हूँ, पर आप तक पहुँचने में मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझसे कितना दूर हो और मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हूँ, मैं मंत्र जाप नहीं कर पाती हूँ। आपने मेरे को बताया कि उन लोगों ने ऐसा कर दिया है कि तू मेरे से दूर हो जाए, उन्होंने मेरा हाथ छुड़वा के अपना हाथ थमा दिया है तेरे को, और तू उन पे विश्वास करने लगी है। मैं गुरुजी उन पे विश्वास नहीं करती हूँ। आपने मुझे बोला कि तू सबको माफ़ कर दे, मैं उनको कभी भी मैं उनको अपने घर में खाने पीने का सामान लाने नहीं देती, वो तो लाते ही हैं, पर मैं उसके लिए कलह कर सकती थी, कलेश कर सकती थी अपने अंकल जी से। पर अब
उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो मना करने के बाद भी कभी अभी भी उन्होंने मेरे अंकल जी को पेड़े दिए हैं, मिठाई दी है। और उनका जब भी वो आते हैं वाइट चीज़ तो लेके ही आते हैं। चटनी आपने मुझे बोला कि अपनी सास के यहाँ का हरा कुछ मत खा, वो जब भी आती हैं चटनी बना के लाती है। जैसे कि हमारे घर में मिक्सी नहीं है या हमारे यहाँ पे कोई चटनी का सामान नहीं मिलता, मैं अगर अंकल जी को बोलती हूँ तो इतना कलेश हो जाता है घर में। और मेरा बच्चा, छोटा सा बच्चा है मेरा, जो इतना कमज़ोर हो गया है हम दोनों की लड़ाइयों की वजह से। मैं गुरूपा क्या करूँ? अगर मैं उनको मना करूँ तो मेरे बच्चे को झेलना पड़ता है, अगर मैं ऐसे खाने दूँ तो भी हमें झेलना पड़ता है। गुरुजी मैं क्या करूँ? मेरे को राह दिखाओ, मेरे को रास्ता दिखाओ गुरुजी, मैं बहुत थक गई हूँ। मेरे अंकल जी मुझे बहुत मारते हैं गुरुपा, आपने देखा है। छोटी छोटी बात पे अगर मैं उनकी मम्मी भी बोल दूँ तो मेरे को सीधा उनका चाटा मेरे मुंह पे आता है। कुछ नहीं देखते कि मैं लात मार रहा हूँ, मैं घुसे मार रहा हूँ। गुरुजी मेरे से नहीं होता बर्दाश्त। आप मुझे बोलते हो कि वो अलग मत हुई हो, तुझे अलग ही करना चाहते हैं, इस वजह से तुम दोनों में इतने झगड़े हो रहे हैं। गुरुजी कौन, मैंने इतना सब सह लिया, मतलब मैं आपसे अभी जुड़ी हूँ, पर आपने तो मतलब आपने तो हमेशा से मेरे साथ जुड़े होंगे। मैं ही भटकी हुई थी। और आपको पता ही है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है शुरू से। तो मैं अभी सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आपको नहीं बता सकती। पर गुरु आपको पता ही है, मैंने इतना कुछ सह लिया। 6 साल से मैं इस इंसान के साथ हूँ और मैं सह रही हूँ। तो गुरुपा मुझे बताओ ना कि कब मेरा सुख का टाइम आएगा, और ये कब तक इस इंसान पे करते रहेंगे। सिर्फ जायदाद प्रॉपर्टी नोटों के लिए वो इतना ज़्यादा गिर रहे हैं कि मेरे बच्चे तक को भी नहीं छोड़ रहे हैं। क्योंकि मैंने परसों अपनी सास को बोला कि मेरा बच्चा बहुत बीमार चल रहा है, मैं किसी पंडित को दिखाऊंगी, मैंने ऐसे ही बोला। वो बिल्कुल चुप हो गए, इतना शांत हो गए जैसे कि उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो, या मैं किसी पंडित के जाऊँगी तो उनकी कोई चोरी ना पकड़ी जाए। गुरुजी आप तो मेरे को बोलते हो कि तेरी सास ने कराया, तेरी जेठानी ने कराया, पर मैं वो चीज़ अंकल जी को नहीं बता सकती। मैं उनको बताऊंगी तो वो कहेंगे, फिर वो मुझे आपकी भक्ति भी नहीं करने देंगे। आप समझ रहे हो ना गुरुजी, वो कहेंगे ये तो सत्संग के तेरे लिए हैं, ये तो फ्रॉड होते हैं, तो ये है वो है। वो मेरे को इस तरीके से बोलेंगे। मैं ये चीज़ भी नहीं बोल सकती गुरुपा, इसी आपकी और मेरे बीच की बात है। और मैं आप जो कोई उपाय बोलते हो तो आपको पता है मेरे अंकल जी शक इतना करते हैं कि मुझे गैलरी में भी नहीं जाने देते, मुझे मेन गेट भी खोलने नहीं देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सारे संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मेरा शुक्राना ये है कि मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसको फ़ीवर हो गया था। तो गुरुपा का मेरे पास मैसेज सत्संग आया था कि तू ये सत्संग कर, और मतलब ये सत्संग सुन तो तेरे बच्चे की तबीयत ठीक हो जाएगी। तो मैंने वो सत्संग सुना। कह रहे थे कि तेरे बच्चे को नज़र लगी हुई है बहुत ज़्यादा किसी की, और तेरे बच्चे पे किसी दो औरतों की नज़र है। तो मुझे पता है वो कौन है। गुरुपा ने मुझे उस सत्संग में भी सुनाया। तो फिर उसके बाद भी मैंने वो सत्संग सुना। फिर उसके बाद मेरे पास मैंने फिर सत्संग भी किया घर में। फिर गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया टेलीपैथी पे कि वो तू चिंता ना कर, मैं तेरे बच्चे के नाल आ, तू इतनी चिंता क्यों करती है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। मैंने वो सत्संग सुना और मैंने सत्संग किया, और फिर उसके बाद आपका मेरे पास मैसेज आया, और तो उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। और मेरा एक शुक्राना सत्संग और है। मैं बहुत टाइम से ये शुक्राना करने के लिए गुरुजी मेरे को बोल रहे थे, पर मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। मेरे बच्चे की ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही है, बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही है। तो गुरुपा का मैसेज आया था एक बार मेरे पास कि तेरा बच्चा तेरी ही वजह से परेशान है, तेरी ही गलती की वजह से परेशान है। तो मैंने वो सत्संग सुना। तो सत्संग में था कि एक आंटी जी बोल रही थी कि बच्चे के लिए कि बच्चे का अबॉर्शन करवाया था। तो सेम चीज़ मेरे साथ भी है। गुरुपा मेरे को माफ़ कर देना। मैं वो गोली नहीं खाना चाहती थी, मैं उस बच्चे को रखती। और वो बच्चा मेरे पेट में ऋषिकेश में आया था, तो हरिद्वार में आया था। तो
मेरे को तब पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। घर आने पर मुझे पता चला था, मैं जब ऋषिकेश हरिद्वार से घर आई थी, तो बच्चा मेरे लिए बहुत कीमती था कि वो आपकी नगरी से आया, मतलब आपकी नगरी में मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो बस मेरा आज भी मुझे उस चीज़ का बहुत दुख होता है। आपने मुझे बोला है हनुमान जी से माफ़ी मांग। हनुमान जी बहुत मतलब वो बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं। तो गुरुपा मैं आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ, हनुमान जी से भी माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे माफ़ कर दीजिए। ना वो मैं गोली खाना चाहती थी, ना मैं उसको बच्चे को अपने पेट में मारना चाहती थी। बस ये मेरे अंकल जी, मेरी सास के सबके कारण हुआ है, क्योंकि मेरे पहले बच्चे में बहुत दिक्कतें आई थी। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई कष्ट दे रहा है तो हम अपने बच्चा ही मार दें। मतलब आज एक फूल के लिए इतनी दुनिया तरस भी रही होगी कि किसी कोई माँ नहीं बन सकता। तो मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगती हूँ, आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। वो बच्चा ना, मैं आज भी उसके बारे में सोचती हूँ गुरुजी, पर मेरा क्या था ना कि जो बच्चा मेरे एक बेटा भी है, उसकी जो कंडीशन आज मेरे अंकल जी ने की हुई है, जो मेरे ससुराल वालों ने की हुई है, मैं आपको क्या बताऊँ गुरुपा। आप सब अपनी आंखों से देखते हो, मेरा बच्चा और मैं घर में बंद है। मतलब मेरे अंकल जी हम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, ना हमें कहीं लेके जाते हैं। और हारी बीमारी हो चाहे कुछ भी हो, बस मेरे घर वाले, मतलब मेरे मायके वाले ही मेरा और मेरे बच्चे का करते हैं हर चीज़। तो मैं उन पे पहले ही बच्चे के लिए उन पे डिपेंड हूँ, तो मैं दूसरा बच्चा कैसे सोच सकती थी गुरुपा। उसके लिए फिर वो मुझ पे बोलते कि मतलब एक बच्चा आज तक उन्होंने पालते, अंकल जी ने पाला नहीं, और तू दूसरे बच्चे के लिए मतलब कैसे सोच सकती है। इस वजह से गुरुपा मैंने वो टैबलेट खा ली। और ना ही मेरे अंकल जी ने मुझे फ़ोर्स किया, ना मुझे किसी ने बोला कि मत खा गोली, तो फिर मैंने वो गोली खा ली थी। मुझे क्षमा कर देना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझे उस आत्मा को, जो भी आपने कहा था कि वो तुम्हारे घर में कोई मतलब दोबारा आ रहा था, मतलब मेरे ससुराल के यहाँ से तेरे पेट, मतलब तेरे कोख से पैदा होके आ रहा था, तूने उसको मार दिया, तो वो पितर बन गया है, वो तो तेरे बच्चे को परेशान कर रहा है। तो मुझे क्षमा कर दो मेरे गुरुजी, उनकी आत्मा को शांति दो। उनसे बोलो कि मुझे माफ़ कर दे, और मुझसे जो गलती हुई है जाने अनजाने, तो मैं ये नहीं बोल सकती कि मैंने कोई जाने अनजाने गोली खा ली है। मैंने खुद से खाई थी, पर उसका पीछे का एक कारण था। प्लीज़ गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं उस बच्चे को रोज़ नहीं मार सकती थी, क्योंकि मैं पहले बच्चे को मैं रोज़ ही मार रही हूँ इस घर में। तो मुझे माफ़ कर दो गुरुपा, मुझे क्षमा कर दीजिए। और मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है, उसको मतलब 1 महीना हो गया है, उसका बुखार ही नहीं उतर रहा है। 2-3 दिन बीच में रख जाता है, फिर उसको हो जाता है। उसको टाइफाइड बन गया है, और टाइफाइड की वजह से उसको बार बार फ़ीवर आ जाता है। उसको जब तक दवाइयाँ देती हूँ ठीक है, दवाइयाँ जैसे बंद होती है उसको फिर फ़ीवर आ जाता है। अब गुरुपा मैं इसको कब तक दवाइयों पे रख सकती हूँ गुरुजी। तो प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ गुरुजी, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे को ठीक कर दो, उसकी तबीयत ठीक कर दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैं यहीं पे सत्संग विराम करना चाहूँगी। और मेरे अंकल जी के लिए भी शुक्राना गुरुपा कि आपने उनको उनकी जान बचाई। और उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जो उनको खरोच तक नहीं आई मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हमें 2 टाइम का खाना देने के लिए, हमें हर रोग जो आप हमारे अंदर सपने में ही काट देते हो, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे घर में जो आपने हमें पैसे दिए हैं, जो खाना दे रहे हो, हर एक चीज़ आप ही का तो दिया हुआ है मेरे गुरुजी। तो उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। आज ही मैं आपकी वजह से ज़िंदा हूँ। आप मुझे कहते हो कि तू मतलब वो तुझे कब का मार देते हैं तेरे ससुराल वाले। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना कि आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, मैं सांस ले रही हूँ। मुझे पता है कि मेरे शरीर में तकलीफ़ है। आप बोलते हो कि तेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा आलस आ गया है, तेरे को सोने को बहुत ज़्यादा मन करता है, तू पूजा से बहुत दूर हो रही है, तो वो भी सब किए पे किया कराया है। तो उसके लिए गुरुजी आप उनको सद्बुद्धि दो, जो मेरे पे करते हैं, जो मुझे आपसे अलग करना चाहते हैं। वो मुझे कितनी भी कोशिश कर ले, पर मैं आपसे अलग नहीं होंगी गुरुपा। हाँ, मैं थोड़ी, मेरे सिमरन कम हो सकता है, मैं थोड़ा पाठ कम कर सकती हूँ, या बिल्कुल ही छोड़ सकती हूँ, पर मेरा जो मन है ना, मेरे मन से वो आपको कभी नहीं निकाल सकते गुरुपा। तो उनको सद्बुद्धि दो मेरे गुरुजी। और मेरे घर में जो भी बुरी नज़र है, बुरा साया है, आप बोलते हो, उनको सबको हटा दो। मेरे पति का वशीकरण हटा दो गुरुपा। वो मेरी एक भी नहीं सुनते हैं, और मेरे ससुराल वालों की वजह से मुझ पे बहुत ज़्यादा हाथ भी उठाते हैं।
मुझे मारते हैं और गालियाँ देते हैं, तो उसके लिए प्लीज़ मेरे पति को सद्बुद्धि दो, मेरे अंकल जी को सद्बुद्धि दो, उन्हें सही राह दिखाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाद।